دین اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے۔ دین اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے، جاہلوں کے ذہن سے غلط فہمی کے پردے کو ہٹا دیتا ہے۔ یہ وہ بہترین مذہب ہے جو کہ ہر انسان کے ساتھ انسانیت سے پیش آنے کا حکم دیتا ہے۔ آداب ناظرین، نیوز 16 ڈیجیٹل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ بنگلور شہر میں ہندو مسلم یکجہتی، ہندو مسلم عیسائی آپس میں ہے بھائی بھائی کے پیغام کو سبھی تک پہنچاتے ہوئے شاندار مسجد درشن کا پروگرام عمل میں لایا گیا۔ جی ناظرین، جماعت اسلامی ہند کرناٹکا کے تحت 17 فروری 2024 بروز ہفتہ بنگلور شہر کے بنر گھٹا روڈ پر واقع مسجد عیدگاہ بلال میں مسجد درشن کا شاندار پروگرام رکھا گیا۔ اس شاندار مسجد درشن پروگرام میں سبھی مذہب کے بھائیوں کو، خاص کر کے ہندو، عیسائی اور الگ الگ مذہب سے تعلق رکھنے والے بھائیوں کو مسجد دیکھنے کے لیے بلایا گیا۔ لہٰذا اس شاندار اور پیارے مسجد درشن پروگرام میں بڑی کثیر تعداد میں ہندو، عیسائی اور کئی اور مذہب کے بھائیوں نے شرکت فرمائی۔ اس پیارے یکجہتی والے مسجد درشن کے پروگرام کے ذریعے سے سبھی مذہب کے بھائیوں کو اسلام کی بہترین تعلیمات کا اصل مقصد، اسلام کے بنیادی ارکان، مسجد کسے کہتے ہیں، اللہ کے گھر میں کیا کیا جاتا ہے، شاندار عبادت، نماز کسے کہتے ہیں، نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے، اذان، وضو، اسلام کے کیا معنی ہیں اور کیا مطلب ہے، آسمان سے اتری ہوئی بہترین اور پاک کتاب قرآن مجید ہم سے کیا کہتی ہے۔ اسی طرح کے دین اسلام کی بہترین تعلیمات سے ہندو، عیسائی سبھی مذہب کے ہمارے بھائیوں کو معلومات دی گئی۔ مسجد درشن کے لیے آئے ہمارے سبھی غیر مسلم بھائیوں کو دین اسلام کی بہترین تعلیمات کی معلومات یہاں پر فراہم کی گئی۔ ساتھ ہی ان کے ذہن میں بیٹھی ہوئی سبھی غلط فہمیاں جیسے کہ کافر، جہاد وغیرہ وغیرہ الفاظ کے معنی اور مطلب کو بھی بہترین انداز میں بتاتے ہوئے ان کی ان غلط فہمیوں کو بھی دور کیا گیا۔ لہٰذا بڑی ہی بہترین ترتیب اور کتابات کے ذریعے سے مسجد درشن کے لیے آئے ہمارے سبھی غیر مسلم بھائیوں کو اسلام کی جانکاری دی گئی۔ سب سے پہلے انہیں شاندار انداز میں مسجد کا دیدار کرایا گیا اور پھر مسجد میں ہونے والے خوبصورت اور پیاری عبادتوں کو دیکھنے کا انہیں موقع دیا گیا۔ پھر اسلام کے بنیادی اصول کے بارے میں رضاکاروں نے اسلام کے کانسیپٹ کو چارٹ کے ذریعے سے انہیں سمجھایا۔ پھر اس کے بعد سوال و جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے اسلام کو لے کر غلط فہمیوں کو دور کیا گیا۔ بتا دیا جائے کہ جماعت اسلامی ہند کرناٹکا کے سیکریٹری جناب اکبر علی اڈوپی اور دیگر نے اپنے خطابات کے ذریعے سے مسجد درشن کے لیے آئے ہمارے سبھی غیر مسلم بھائیوں کے سوالات کا بہترین انداز میں جواب دیا۔ آخر میں یہ بتا دیا جائے کہ اس مسجد درشن پروگرام کے سبھی منتظمین اور مسجد عیدگاہ بلال کے ذمہ داران نے اس موقع پر سبھی تک ایک پیارا پیغام پہنچایا کہ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ہر مسجد میں اسی طرح کے پروگرامز رکھے جائیں اور ہر مسجد کمیٹی اگر اپنے اپنے علاقوں میں رہنے والے سبھی ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو اسی طرح سے مسجد میں آنے کی دعوت دے اور اسلام کی بنیادی معلومات انہیں فراہم کرے تو آج کل سماج میں پھیلی ہوئی نفرت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اسلام کے خلاف بولنے والے، اسلام کے لیے دل میں نفرت رکھنے والے لوگوں کے مقصد کو بھی ایسے پروگرامز کے ذریعے سے ناکام کیا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی سوشل میڈیا پر پھیلی ہوئی غلط فہمیوں کو بھی ایسے پروگرامز کے ذریعے سے دور کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا نفرت سے بھرے آج کل کے اس ماحول میں ایسے پروگرامز سبھی مسجدوں میں ہونے چاہیے۔ آئیے دیکھتے اور جانتے ہیں اس بہترین خبر کی مزید تفصیلات۔ یہ بھی غلط بات، دھرم بچانا ہے تو آپ دلوں کو دلوں سے جوڑنا، ایک دل دوسرا دل سے اگر آپ جوڑتے ہیں تو آپ دھرم کا کام کر رہے ہیں، ایک دل سے ایک دل کو آپ توڑتے ہیں تو آپ دھرم کا کام کر رہے ہیں۔ یہ اسپشٹ سندیش ہمیں سماج کو دینا ہے، اس سنسار کو دینا ہے مجھے۔ یہ سنسار ہے، یہ سنسار آج بگڑ گیا۔ دھرم کس لیے آیا ہے؟ دھرم انسان کو انسان کے ساتھ جوڑنے کے لیے آیا ہے۔ دھرم اس لیے آیا ہے کہ یہ سارے انسان کو اللہ سے جوڑنے، بھگوان سے جوڑنے کو آیا، ایشور سے جوڑنے کو آیا ہے دھرم۔ اس کا نام دھرم۔ یہ مسجد ایک آرادھن کیندر ہے، ہمارا جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں اس میں ہوتے ہیں۔ اس میں ایک تو آپ مینارہ دیکھتے ہیں، مسجد وہ نشان کرنے کے لیے مینارہ۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت ہی اچھا ایک ان لوگوں نے ایک انیشیٹو لیا ہوا ہے، اور جو لوگوں کو لگتا ہے کہ مسجد ہے، مسجد کے اندر کیا ہوتا ہے پتہ نہیں،
So this is a great opportunity, or I always look forward to this kind of things. And we always invite our friends to our houses, our religious places. And this will certainly help us as a community to build a unity and an understanding. Unity by understanding each other's religion. And only when we understand the religion, we would stop hating people based on religion. Unless until we understand what is the meaning of religion, why they say something like whatever is said. And once we understand that, it will improve the unity and friendship in our country. So great. We have been seeing this mosque from outside for last many years. And it's a beautiful mosque from outside, and it's in fact, I would say it's more beautiful inside. And the people that we met, the messages that we heard from various people, I think this is really a very welcome step. And we would recommend and suggest that all religions take these kind of steps so that we build a very cohesive society. It was a great pleasure to visit this expanded and renovated masjid, and we all we came in a group of about 4 or 5 people here on invitation, and we saw the very beautifully done interiors, which is very serene, and at once as you enter, at once you are drawn into the state of devotion and attraction towards the this religion, which is common to everybody, as he was giving lecture. So it was a very good visit, I would say. It is a very sincere attempt on the part of the masjid trustees to sort of bring in all religions and try to understand each other and to live in peace, harmony, as well as see the religion in a right perspective and practice the religion for the sake of benefit of everybody. Thank you. अच्छा, आज इन्होंने जो प्रायोजन किया था बहुत अच्छा है. मुझे लगता है भारत में हर कोई मॉस्क और मंदिर ऐसे साथ में मिलके, मुस्लिम्स, हिंदूज, क्रिश्चियन जो भी है, सबने साथ में मिलके रहना चाहिए. वही भारत है. बस आपने कुछ सवालात भी यहाँ पर किए, तो हाँ, थोड़ी सी गलतफहमी सी थी जो मैंने आज क्लियर करा. मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है जो लोग बनाते हैं ये सब, ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं है. हम सब एक ही है, और जो मॉस्क में सिखाते हैं वही मंदिर में सिखाते हैं. ये हम आज जाने. वो लोग हैं जो इसको खराब करते हैं. जो यूनिटी होनी चाहिए समाज, यूनिटी 100% होनी चाहिए. इसी वजह से मैं यहाँ पे हूँ. ये आपको खुद ब खुद आना चाहिए. हम भी जैसे करते हैं, बिरयानी लेके आओ बोलते हैं ईद में मुस्लिम फ्रेंड्स को, वैसे आपको भी होना चाहिए. और ऐसा है भी, मैं नहीं मानती हूँ कि ऐसा है नहीं. हर कोई अगर शादी में बुलाते हैं, हम सब जाते हैं. आप भी आते हो, हम भी आते हैं. ये जस्ट जो लोगों ने क्रिएट किया है ना, उसको थोड़ा सा ये करना चाहिए. मतलब मीडिया ने वगैरह ना, ये सब कम करना चाहिए. जोर से बोलिए. ये कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया था. यहाँ के होस्ट जो थे, मेजबान जो थे, हमारी बहुत अच्छी खातिरदारी की. इस्लाम का असली रूप बताया उन्होंने हमें इस्लाम धर्म के बारे में कई गलत फहमियाँ थी. यहाँ पे जो स्पीकर थे, उनका नाम नहीं जानती मैं, लेकिन बड़े हंसमुख थे और बहुत ही स्पष्ट तरीके से सब कुछ समझाया. आई वुड लाइक टू थैंक दी ऑर्गेनाइजर्स अ लॉट. थैंक यू वेरी मच. आज जो माहौल बना हुआ है, हाँ जी. मंदिर मस्जिद, इस पर काफी पॉलिटिक्स होती है, तो कैसे यूनिटी कैसे होनी चाहिए? यहाँ आकर ये स्पष्ट हो गया हमें कि इस्लाम मूलतः हकीकत में बहुत बढ़िया धर्म है, और सिर्फ उसका इंटरप्रिटेशन जो है थोड़ा अलग से हमने समझ रखा था. तो शायद ये है हमारा नतीजा कि इस्लाम के कई फॉलोअर्स जो हैं इसका अब्यूज कर रहे हैं, लेकिन धर्म बहुत बढ़िया है. इसका अब्यूज इसलिए हो रहा है कि कई फॉलोअर्स ठीक से इसका प्रचार नहीं कर रहे हैं. इसके नाम पे कई मतलब परेशानियां फैली हुई हैं. तो आई थिंक दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से. थैंक यू. जो सवालात थे, इनके जहन में जो बातें थी, उसे कैसे आपने क्लियर किया? वो क्या है, गलत फहमियाँ है.
कुछ अरबी वर्ड को लेकर ये लोग गलतफहमी फैला दिए हैं सोसाइटी में, जिहाद को लेकर, काफिर को लेकर, पर्दे को लेकर, मस्जिद को लेकर, ये सारी चीज़ों को लेकर ये गलतफहमियां पैदा कर दिए हैं। तो ये उसी वक्त हल हो सकता है कि उनके साथ हम बैठें, उनके साथ गुफ्तगू करें, उनके साथ डायलॉग करें और उनको हमारे पास बुलाएं या हमें उनके पास जाएं। ऐसे इवेंट जितना ज़्यादा होगा, वो मस्जिद दर्शन के नाम से करो, इफ्तार पार्टी के नाम से करो, आप ईद मिलन के नाम से करो, सीरतुन नबी के नाम से करो, जो भी नाम से करो, मगर ये सोसाइटी जो डिवाइड करने की बहुत बड़ा साजिश जो चल रहा है यहाँ पर, इसे जोड़ने के लिए हमें इस्लाम का और दूसरे धर्म का हमें सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि धर्म के नाम से हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें धर्म के नाम से ही उसे जोड़ना होगा। और धर्म की ताकत है कि वो इंसान को इंसान से जोड़ सकता है, उसे एक दूसरे को समझ सकता है। तो जो भी उनके पास गलत फहमियाँ है, ये दूर करने का असल जिम्मेदारी ये मसाजिद कमिटीज का है। जहाँ तक हमारा मसाजिद के अजान पहुँचते हैं, वो अतराफ के लोगों को हम मस्जिद की तरफ बुलाएं और मस्जिद का उनको दर्शन कराएं, और मस्जिद में जो भी हमारा इबादतें होते हैं और जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, इसके सिलसिले में उनको जानकारी दें और उनके पास मिलने की जो कोशिशें हैं हमारे, उसका आगाज अगर यहाँ से होता है तो ये बहुत अच्छा काम है। क्योंकि मस्जिद का ऊपर, मस्जिद के सिलसिले में आज भी हमारे बिरादरान वतन के दिल में बहुत मोहब्बत है और बहुत एहतराम भी है। वो जिस तरह उनके देवस्थान टेम्पल को जो वो सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, मस्जिद के सामने ठहर कर भी वो नमस्कार करते हैं, सलाम करते हैं। वो एक अच्छा जो क्या है तस्वर उनके पास है, तो उसे हमें उभारना चाहिए और उसका फायदा हमें उठाना चाहिए। ये एक अमन वाला हमें समाज चाहिए। शुक्रिया सर। किसकी जानिब से था और कैसे तरतीब दिया गया? शहर बेंगलोर में हमारे बिरादरान वतन, ख्वाहिरान वतन, दूसरे मज़हब के मानने वाले जो लोग हैं, उनको इस्लाम के जो शायर हैं, मस्जिद है और मस्जिद के जो मीनार हैं, मस्जिद के अंदर किस तरह से नमाज अदा की जाती है और ये इस्लाम का बुनियादी रुकन है, इस एतबार से, इस्लाम की दावत के मौके के एतबार से हम मस्जिद दर्शन या मस्जिद टूर का प्रोग्राम शहर बेंगलोर में जमात इस्लामी हिंद के ज़रिए से यहाँ पर इसको मुनक़िद किए हैं और शहर के दूसरे मसाजिद में भी उन मसाजिद के ज़िम्मेदारान के ताउन से इसको मुनक़िद किया जाता है। तो हम जो हमारे आसपास मुकाम, रियासत और मुल्क में जो माहौल देख रहे हैं, वो माहौल इंसानियत के लिए और इस्लाम के पैगाम जो पूरी इन दुनिया के लोगों के लिए है, उसके लिए माहौल को बिल्कुल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो इंसानों के अंदर यकजहती, इंसानों के अंदर बिरादराना ताल्लुकात और इंसानों के अंदर एक दूसरे के साथ उख़्वत व मोहब्बत के साथ रहने का जो समाजी हम आहंगी है, उसके लिए हम इस प्रोग्राम को भी मुनक़िद करते हैं। आज का ये प्रोग्राम जो मस्जिद ईदगाह बिलाल में मस्जिद दर्शन के तहत यहाँ मुनक़िद किया गया है, ये जमात इस्लामी हिंद शहर बेंगलोर, मस्जिद कमेटी, ईदगाह बिलाल, जयनगर मसाजिद फेडरेशन, सॉलिडरिटी यूथ मूवमेंट और स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, इन तमाम की मिली जुली कोशिशों से इसको मुनक़िद किया गया है। यहाँ पे नुमाइश भी हुई है क्या? और इसकी इस मरतबा, इससे 2 साल पहले भी हमने इसी मस्जिद में मस्जिद इंतज़ामिया के ताउन से इसको हमने मुनक़िद किया था। उसके मुकाबले में इस मरतबा जो इसको बेहतर करने की कोशिश की गई, इस्लाम की बुनियादी तालीमात पर और कुरान करीम के मुख्तलिफ ममालिक में जो मुख्तलिफ औकात में कुरान करीम के जो नुस्खे हैं, उनको भी यहाँ लाकर एक एग्जीबिशन भी मुनक़िद की गई है, जिसको यहाँ पर आने वाले तमाम लोगों ने विज़िट किया और इससे बहुत ही मस्बत उन्होंने असर लिया और इससे बहुत ही वो इससे मुतासिर हुए हैं।
इस एतबार से ये एग्जीबिशन इस मरतबा का इस्लाम के पैगाम को पहुँचाने और उसकी बुनियादी तालीमात को लोगों तक पहुँचाने का बहुत ही अच्छा ज़रिया साबित हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों ने बड़ी मेहनत की है, मस्जिद इंतज़ामिया ने पूरा अपना ताउन दिया है और उनके इस ताउन से आज का ये प्रोग्राम अल्लाह के फजल करम से कामयाब हुआ है। 500 से भी ज़ायद एक जो मैं नमाज असर और मगरिब तक की जो मैंने देखा हूँ लोगों का नंबर, 500 से भी ज़ायद हमारे दूसरे मज़ाहिब को मानने वाले भाई बहनों नौजवान दोस्तों जिनका जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोफेशन में वो माहिरीन है, उन लोगों ने, ख़वातीन ने, बच्चों ने, नौजवान लड़के और लड़कियों ने मस्जिद का आकर यहाँ पर उन्होंने विज़िट की है और इसको बड़ा सराहा है। एक ख़ास बात जो यहाँ पर उभर कर आई है और मैं समझता हूँ शहरियान बेंगलोर और खुसूसन शहर की तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदारान के लिए उनके जानिब से ये पैगाम है। उन्होंने ये कहा सबके जानिब से ये मुश्तरक बात आई है कि आप इस तरह का मस्जिद का प्रोग्राम बार बार मुनक़िद करते रहें। तो मैं ये अपील करता हूँ शहरियान बेंगलोर और खुसूसन मसाजिद के ज़िम्मेदारान के जो शहर की नुमाया मसाजिद है वहाँ पर बड़े पैमाने पर और हर मोहल्ले की मस्जिद में उनके आस पड़ोस में जो हमारे दूसरे मज़ाहिब को मानने वाले भाई बहनें हैं उन तमाम के लिए अपनी अपनी मस्जिद में मस्जिद टूर के नाम से आप प्रोग्राम मुनक़िद करें। ये एक बड़ा अच्छा ज़रिया है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी मस्जिद नबी को मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मस्जिद में ही मिलते थे। इस एतबार से हम मस्जिद जो इस्लाम का एक बुनियादी शार है और इसके अपने रूहानी असर होते हैं, इंशाअल्लाह ताला इसके ज़रिए से लोगों पर बड़े मुस्बित असरात होंगे और ये नफ़रत का जो माहौल हमारे मुल्क में बढ़ाया जा रहा है और लोगों को बांटा जा रहा है और मुसलमानों के ताल्लुक से और इस्लाम के ताल्लुक से गलत फहमियाँ फैलाने की कोशिश की जा रही है, इस तरह के प्रोग्रामों के ज़रिए से वो गलत फहमियाँ भी दूर होंगी, दिल भी मिलेंगे और समाजी यकजहती और हम आहंगी पैदा होगी जिससे हमारे मुल्क में अमन और अमान की राहें इंशाअल्लाह ताला खुलेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी एक प्रोग्राम हमें करे थे यहाँ मस्जिद ईदगाह बिलाल में पहले शुरुआत हुई थी, उसका बहुत अच्छा असर पड़ा था कर्नाटका के अंदर बहुत। उसके बाद हम करने के बाद दूसरे मस्जिद वालों ने भी बहुत मस्जिदों में किया, मंगलोर में भी किए थे, मंगलोर में भी बहुत सक्सेसफुल था, बहुत ही इसकी तारीफ की। आज जो माहौल है हिंदुस्तान का इसमें बहुत ज़रूरी है ये काम करना, मस्जिदों में उनको बुलाना, हम क्या करते हैं उनको मालूम तो कराना। अब अगर हम ऐसा मालूम कराएंगे, ऐसे इनके साथ मिलजुल कर मोहब्बत से बात करेंगे, इनको हमारे बारे में मालूमात कराएंगे तो वो उनको भी एक ख्वाहिश होती है और क्या है दीन इस्लाम के बारे में क्या है, इस्लाम में क्या है, हमें भी देखना, हमें भी पढ़ना। जब तक कोई सा भी धर्म ग्रंथ है जब तक उसे पढ़ते नहीं तब तक मालूम नहीं होता। जो लोग बोलते हैं नफरत फैलाने वाले बहुत कम है, इज्जत करने वाले, हर धर्म का इज्जत करने वाले बहुत लोग हैं। हम चाहिए कि हम उनको मिलाएं, हम उनके साथ बात करें, इससे बहुत फ़ायदा होता है। मैं कर्नाटका के तमाम या हिंदुस्तान के सारे मस्जिदों से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि एक बड़ी मस्जिद में आजू बाजू के मस्जिदों को जमा करके एक ऐसा ही मस्जिद दर्शन का एक प्रोग्राम बनाए, इससे बहुत उनके ऊपर असर पड़ता है। और जो हम काम करते हैं मस्जिद के अंदर क्या करते हैं उनको भी मालूम पड़ना चाहिए। हम मस्जिद इतनी बड़ी बनाते हैं तो चंद लोग आके हम नमाज पढ़ते हैं चले जाते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है क्या हमें इसके अंदर बात करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, क्या कुछ बयान करते हैं, क्या करते हैं उनको मालूम नहीं होता। इसीलिए हमें चाहिए कि ये बहुत ज़रूरी है मस्जिद दर्शन का, और हमारी किताबों के बारे में भी उनको मालूम कराना है और हमें फ्री भी उनको किताब दे करके उनको पढ़ाने की कोशिश करना है। इससे अमन भी रहेगा और इस्लाम क्या चीज़ है, इस्लाम भी फैलेगा।